आगे बढ़ने में मदद किया जाए, एक हैप्पियर और हेल्थियर लाइफ जो है वो जीने में मदद किया जाए। तो चलिए यहाँ पे एक छोटे से कोट के साथ मैं आगे बढ़ूंगा और शुरू करूंगा, जो कि कहा गया है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा। क्या कहा गया है? We cannot always build the future for our youth, but we can build our youth for the future. जी हाँ, कहने का तात्पर्य ये है कि हम हमेशा अपने युवाओं के लिए भविष्य तो तैयार नहीं कर सकते, लेकिन अपने युवाओं को भविष्य के लिए जरूर तैयार कर सकते हैं। और इसीलिए एमवे बिजनेस मदद करता है आपको, सभी यूथ को, अपने अंदर के ट्रू पोटेंशियल को जानने के लिए, उसे निकाल कर बाहर लाने के लिए और लाइफ में ग्रो करने के लिए। तो एक छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो है जो मुझे मिला और मैं चाहता हूं जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा इन अ गुड सेंस। ओके, बीपी वाला नहीं, इन अ गुड सेंस आपके एनर्जी लेवल को इंक्रीज करेगा। इस वीडियो को जरिए देखिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे और अपने गेस्ट स्पीकर के साथ आज लाइव इंटरेक्शन होने वाला है। लाइव हम टॉक शो करने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में है, मेरे मन में है, वो हम उनसे पूछने वाले हैं। आइए पहले उससे एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। What's stopping you? Are you too tired? Didn't get enough sleep? Don't have enough energy? Don't have enough time? Is that what's stopping you right now? Don't have enough money? Is that the thing? Or is the thing that's stopping you, you? Excuses sound best to the person that's making them up. Stop feeling sorry for yourself. Get off the pity potty. Telling everybody your sad and sob stories, trying to get people to show up to your pity potties and your pity parades. If you ever see me in a Rolls Royce, a 6 or 7 star hotel, living my life to the fullest, don't get jealous of me, because I work my ass off to get it. Nobody handed me nothing. Wake your ass up. Awaken the beast inside. It's game on. It's go season. It's time for you to take advantage of the access and the resources that you have in your country and your community. You got a problem with your life. You got a problem with your environment. Do something about it. If you want it, go get it. Recognize the excuses are not valid. They're conjured up. They're fabricated. They're lies. And how do you stop the lies? You stop the lies with the truth. And the truth is, you have time. You have the skill. You have the knowledge and the support and the willpower and the discipline to get it done. The fruit of everything good in life begins with a challenge. Everything is uphill this worthwhile. And it's not going to come to you, and it's not going to fall in your lap, and it's not going to be something that, oh my God, it just was so simple. It's always going to be difficult. If you want it, you gotta go get it. This is your chance. This is your shot. This is your moment. This is your time. This is your place. This is your opportunity. This is my time. This is my moment. Tomorrow. Ain't no such thing as tomorrow. We only got today. It's your dream. If you want to have it, put your butt up and make it happen. If you want to have it, rise and grind. You still got work to do. Stay on that basketball court. Stay on that football field. It's grind season, homie. जी हाँ, कल करेंगे, कल आएगा, वो कल कभी नहीं आता। इट्स ऑल अबाउट टुडे। आज आपको करना होगा, आज आपको उठना होगा, बिकॉज तो युवा है तो कुछ भी कर सकता है। और इसी मैसेज के साथ जो है वो हम आगे बढ़ते हैं और युवा के इस कार्यक्रम में बात करते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव है इस कार्यक्रम का? इस कार्यक्रम का ऑब्जेक्टिव होता है ज्यादा से ज्यादा युवाओं को सशक्त बनाना, बिजनेस में ग्रो करना, नए पिन लेवल्स में माइग्रेट करना। अब क्यों हम लोग ये कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं, क्यों हम ये लगातार नए नए एपिसोड्स करते हैं, नए नए U35 स्पीकर्स को आपके सामने लेकर आते हैं। ये जो हमारा एपिसोड है, ये 6th एपिसोड है। जी हाँ, दिसंबर 2022 में हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत करी थी और ये हमारा 6th एपिसोड है, जहाँ पे सक्सेसफुली हम 6ठे महीने में जो है वो नए 6 स्पीकर्स आपको मिलाने वाले हैं।
सो इंडिया जो है वो वर्ल्ड में सबसे यंगेस्ट कंट्री है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो आबादी है ना, उसकी ज्यादातर पॉपुलेशन, स्पेशली अगर मैं बात करूँ, 65% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन जो है वो 35 साल से कम उम्र की एज ग्रुप में आती है, 35 ईयर्स एंड अबव बिलो एज ग्रुप में। यानी आने वाले समय में कितने ज्यादा लोग, अगर आप देखोगे ना, तो कितने ज्यादा लोग इंडिया में ज्यादा यंगर एज ग्रुप में आ रहे हैं। और जब हम जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं या वर्क अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, तो पहले हमारे पास वर्क अपॉर्चुनिटी के रूप में या पार्ट टाइम इनकम अपॉर्चुनिटी के रूप में गिने चुने ऑप्शंस हुआ करते थे। बट नाउ इफ यू थिंक ऑफ, लोग जो है वो पार्ट टाइम इनकम अपॉर्चुनिटी को फुल टाइम इनकम अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ज्यादातर जो कंपनीज आ रही है, उनके जो फाउंडर हैं, उनके जो डायरेक्टर हैं, वो 40 से कम एज ग्रुप के हैं, अंडर 40 एज ग्रुप वाले हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों पे बड़े बड़े पोस्ट लेवल पे जो जा रहे हैं, वो यंग पॉपुलेशन जो है वो पहुंच रही है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने भी जो है वो एक कॉर्पोरेशन का सेटअप किया हुआ है, जिसका नाम है NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का जो है वो यहाँ पे फॉर्मेशन किया गया है। इसका काम है युवाओं को नए नए स्किल सिखाना, उन्हें जो है वो नए नए लर्निंग प्रोग्राम्स के तहत रजिस्टर करवाना और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करना, ताकि जो है वो कल को अपने आप को एम्पावर कर सके, किसी पे डिपेंडेंट ना रहे और खुद के लिए जो है वो अपनी अर्निंग अपॉर्चुनिटी बिल्ड कर सके। अब बारी आती है यहाँ पे, जब हम टारगेट ऑडियंस की बात करते हैं, तो हु इज आवर टारगेट ऑडियंस? हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है? युवा की जब हम बात करते हैं तो हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है? हमारे टारगेट ऑडियंस में सबसे पहली बात आप ध्यान रखिएगा, वो है 18 ईयर्स एंड अबव एज ग्रुप के लोग। 18 ईयर्स एंड अबव एज ग्रुप, ये मिनिमम क्राइटेरिया। दूसरी चीज, पार्ट टाइम एम्प्लॉयड, जो लोग ऑलरेडी कहीं पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, वो आपके टारगेट ऑडियंस होंगे। तीसरी चीज, कॉलेज स्टूडेंट्स, जो लोग ऑलरेडी, अभी आप देखोगे ना, बहुत सारे कॉलेजेस में बहुत सारे लोग डिग्री कंप्लीट करके बाहर निकल रहे हैं, राइट? बहुत सारे कॉलेजेस में डिग्रीज कंप्लीट हो रही हैं, कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं। अब क्या आगे लाइफ में क्या है, कुछ पता नहीं। कॉलेजेस से लोग जो है वो लाखों की तादाद में बच्चे पास होकर निकल रहे हैं, डिग्रीज लेके हासिल होकर निकल रहे हैं बाहर। लेकिन बाहर जब आ रहे हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटी कितनी मात्रा में है? 1000 की क्वांटिटी में, लैक्स की क्वांटिटीज में लोग पास आउट होकर निकल रहे हैं, 1000 की क्वांटिटी में जॉब अपॉर्चुनिटी है। तो फिर कैसे चलेगा? तो वो आपके टारगेट ऑडियंस होने चाहिए। यंग ट्रैवलर्स, जिनको घूमने फिरने का बहुत शौक है, काफी ज्यादा ट्रैवलिंग का शौक है, वो आपके टारगेट ऑडियंस होंगे। और ऐसे लोग जो एक इनकम अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, जो जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, बहुत साल से जो है वो खाली है, कोई काम नहीं है, कुछ काम ढूंढ रहे हैं, वो सभी लोग आपके टारगेट ऑडियंस होंगे। और जब आप इन सभी लोगों को मिलेंगे तो इन्हें क्या बताएंगे? तो उन्हें जो है वो आप यहाँ पे एमवे बिजनेस, एमवे प्लेटफॉर्म के बारे में बताएंगे। कैसे बताएंगे? तो ये सारी चीजें बताएंगे हमारी आज के खास गेस्ट स्पीकर। तो क्या आप सभी रेडी हैं हमारी गेस्ट स्पीकर से मिलने के लिए? Are you all ready? Are you all excited to meet our guest speaker? Because वो कैमरा पे वो एक्साइटमेंट एनर्जी दिखते रहनी चाहिए, क्योंकि एमवे जो है वो उनको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, सभी U35 ADS पार्टनर्स को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है कि वो अपने पैशन को फॉलो कर सके और उस पैशन को जो है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सके, उनके अंदर का जो ट्रू पोटेंशियल है उसे बाहर निकाल सके। तो चलिए, अब ये सारी चीजें कैसे करनी है, कैसे पॉसिबल होगा, ये सब कुछ हम सुनेंगे हमारे आज के गेस्ट स्पीकर से। प्लीज वर्चुअली आप उनके लिए क्लैप कर सकते हैं। अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। जी हाँ, दिशा मुसले जी के लिए, जो कि फाउंडर प्लैटिनम लीडर हैं, महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं, बहुत ही सक्सेसफुली कम समय में इस बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर लेके गई हैं, और उनसे आज हम लाइव टॉक करेंगे, बात करेंगे, सवाल जवाब पूछेंगे। सो दिशा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू। यस, थैंक यू सो मच सर। युवा के इतने बढ़िया स्टेज पे मुझे फर्स्ट टाइम चांस मिला है, तो मैं आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ, स्पेशली मित्तल सर का, अंकित सर का। तो मेरे लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, सो थैंक यू। और जैसे मैं अपने स्टार्टअप, मतलब मेरे बारे में बताना चाहती हूँ, मेरे नाम दिशा विघ्नेश मुसे है और मैं महाराष्ट्र के एक यवतमाल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। और वहाँ यवतमाल डिस्ट्रिक्ट के पास में एक छोटा सा गाँव है, वहाँ से बिलोंग करती हूँ। और जैसे मेरे परिवार, मतलब मैं किसान परिवार की बेटी हूँ, और मेरे माँ बाप, माता जी, पिताजी और बहन भाई, ऐसा एक छोटा सा परिवार है। और मेरा एजुकेशन कॉमर्स मास्टर में हुआ है। उसके बाद मैं हायर एजुकेशन के लिए यहाँ पे यवतमाल आई थी, और यवतमाल में आने के बाद मेरी मुलाकात मेरे मिस्टर अविनाश जी से हुई, अविनाश मुसे, जो जिनका 15 साल से
मेडिसिन का होलसेल बहुत बड़ा फार्मा बिजनेस है, वो संभालते थे। और उसके साथ साथ एमवे बिजनेस जो है वो बहुत पैशनेटली बिल्ड कर रहे थे। जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो तब के टाइम में वो 9% पे थे। और जब मैंने उनसे पूछा कि एमवे क्या है, कैसा है, तो उन्होंने बताया कि एमवे एक ऐसा बिजनेस है। एक्चुअली मैं यवतमाल में जब आई थी तो तब मैं मेरा एजुकेशन के लिए आई थी। ऑलरेडी मुझे मेरा जो एजुकेशन था या हाइट पर्सनालिटी की वजह से मैं पीएसआई की तैयारी करने के लिए यवतमाल को आई थी। और सभी कहते थे कि आप अच्छे से, और मैं फर्स्ट रैंक 12वीं की थी। तभी इनसे मुलाकात हुई और एक लाइफ चेंज टर्न आउट हो गया पूरा। तो टर्निंग पॉइंट हो गया मेरे लिए और बहुत बढ़िया टर्निंग हुआ। और जो मेरे सपने थे बड़े बड़े, तो वो उसके लिए तो जॉब में चूज करना चाहती। हर टाइम मेरे दिमाग में जॉब का ही था, पर मेरा पूरा माइंड घुमाने का काम, मतलब जैसे कुम्हार अपने मड़कों को आकार देने का काम करता है, वैसे ही मुझे बिल्ड करने का, मतलब मेरे अंदर एमबीए क्यों करना चाहिए, क्या हो सकता है, कैसे, ये पूरा बिल्ड करने का काम मेरे मिस्टर ने किया है। तो वहीं से शुरुआत हुई। और मैंने फर्स्ट टाइम, जैसे हमारी शादी के पहले 2 सेमिनार अटेंड किए, एंगेजमेंट हुई थी, तो सेमिनार भी एक मुंबई और अकोला में किया था। शादी के बाद जैसे हमें हर साल ट्रिप्स मिलते हैं मेडिसिन के, पर हम कभी भी ट्रिप्स को भी नहीं गए, क्योंकि हमने ठान लिया था कि हम एमबीए के ट्रिप से ही एंजॉय करेंगे। तब तक, जब तक हम प्लैटिनम नहीं गए, फाउंडर प्लैटिनम नहीं गए, तब तक हमने कोई ट्रिप भी नहीं किया था। मिलते थे फ्री में, फिर भी नहीं किया। तो ऐसे हमारी शुरुआत रही है। तो बहुत अच्छे से एकदम बढ़िया से मेरी एंट्री हुई। क्योंकि पहले भी जो एजुकेशन था तो उसमें सिर्फ मुझे जॉब माइंड में ही था। पर जब मैंने ये बिजनेस के बारे में उनसे सुना कि मेरे जो सपने थे, और मेरे एज भी 22 ईयर्स था, मतलब एक यूथ के एज में जो सपने हैं वो यूथ के तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। जिंदगी के प्रति बहुत बड़े बड़े सपने रखते हैं। इतने बड़े सपने होते हैं कि घर घर के लोग भी सोचते हैं कि ये ऐसा सच में होगा क्या। पर ये बिजनेस की वजह से एक मुझे फेथ मिला जब मैंने सेमिनार अटेंड किया, मुंबई को गई, और वहां पे मैंने भी मुझसे भी बड़े हाई प्रोफाइल, मुझसे भी अच्छे दिखने वाले, मुझसे भी ज्यादा टैलेंटेड लोगों को, और जो मेरा सपना था पीएसआई, उससे भी बड़े पोस्ट के जब लोगों को मैंने एमबीए बिजनेस बिल्ड करते हुए देखा, तभी मेरा पूरा वाई क्लियर हो गया। और ऐसे एक मेरा बैकग्राउंड है, ऐसे एक मेरा स्टार्टअप है। सो थैंक यू सर। सो यहाँ पे मैम ने बताया कि मैम 22 साल की उम्र में आपने शुरू किया। That's what I heard. क्या बात है। और मैम ने ऑलरेडी फाउंडर प्लैटिनम का लेवल अचीव कर लिया है। और एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि उन्होंने ठाना हुआ है कि ट्रिप्स करेंगे तो एमबीए की तरफ से करेंगे। सो ग्रेट। इस स्मॉल इंट्रोडक्शन के बाद अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने ऑलरेडी हमारे एडीएस पार्टनर से कलेक्ट किए हुए हैं, और वन बाय वन में क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता जाऊंगा। मीनवाइल बाकी लोग जो सुन रहे हैं, आपके मन में भी अगर कोई सवाल आ रहा है तो आप मुझे चैट विंडो पे लिखकर पोस्ट करते जाइएगा। तो मैम, हम लोग जब एमवे बिजनेस को प्रेजेंट करने जाते हैं मार्केट में, या हमारे एडीएस पार्टनर जाते हैं और युवाओं को जब हम बताते हैं कि एमवे बिजनेस ये है, एमवे अपॉर्चुनिटी ये है, व्हाई शुड यूथ जॉइन दिस एमवे बिजनेस? उन युवाओं को इस एमवे बिजनेस को क्यों ज्वाइन करना चाहिए? क्या कहना है आपका? यस, थैंक यू सो मच। और युवा का जो स्पेशल विषय है, ये तो मेरा एकदम फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। क्योंकि एक युवा की एज में आप जब कुछ करना चाहते हैं, तो आपके जो ड्रीम्स होते हैं, या आप कोई भी करना चाहते हैं, कोई भी चैलेंज लेने के लिए युवा जो होता है वो रेडी रहता है। क्योंकि युवा एक क्रिएटिव होता है। वो फैक्ट्स पे बात करता है, मतलब कोई किसी ने कुछ भी कह दिया तो उसकी नहीं, वो अपने फैक्ट्स पे जाके बात करता है। तो उसी तरह मैं भी थी। तो सभी युवा को मैं एक तो पहली बात ये कहना चाहती हूँ कि आप आने वाले 5 साल 10 साल में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, या आप अपने आप आपको ऐसा लगता है, या आपके हस्बैंड को छोड़ के या वाइफ को छोड़ के आप सिर्फ अपने बॉस के पीछे सारा दिन दे, और सारा दिन देने के बाद आप पैसा कमाए? कोई युवा नहीं चाहता। सभी युवा चाहते हैं कि हम अपने फैमिली के लिए, जो अपनी लाइफ है, जो भी है, वो जो ड्रीम है वो चाहते हैं। और युवा के स्पेशली तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, लाइफ ऑफ चॉइस चाहिए, मतलब लाइफ ऑफ सर्वाइवल जो भी है, अपने जो आज का युवा जो है वो किसी के अंडर रह के काम नहीं करना चाहता। उसको ऐसा लगता है कि उसका कुछ खुद का अपना हो, और वो ऐसा काम हो जिससे पूरी दुनिया जाने। ठीक है ना? तो ऐसे बहुत से कारण होते हैं जो युवा को ऐसा लगता है कि जैसे देखो, जॉब की कंडीशन देखते हैं कि लाखों की संख्या में युवा है आज प्रिपरेशन में उतरे हुए हैं, पर जो जॉब की कंडीशन देखते हैं तो वो कुछ भी नहीं है।
इस टाइम में एक ऐसा बिजनेस अगर आपके लाइफ में आता है जिससे मतलब 2 से 5 साल अगर आप काम करते हैं और ये अच्छी तरह काम करने के बाद आपको अपने मन के हिसाब से अपने जो आपने सोचा था कि कैसी लाइफ जीनी है। मैंने एक दो अपने लीडर्स से बात की है टीम के, तो उनको जब मैंने पूछा कि आप एमबीए बिजनेस ही क्यों करना चाहते हैं, ऑलरेडी तो एमबीए होके है या बहुत सा अच्छा अच्छा एजुकेशन, किसी का इंजीनियर चालू है, किसी का एमबीए चालू है, ऐसा बहुत से अच्छा अच्छा एजुकेशन चालू है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप एमबीए बिजनेस ही क्यों करना चाहते हैं। एक दो युवा का मैंने जैसे पूछा तो उन्होंने बताया कि एक लड़का है, उसने बताया कि मैं अपने वाइफ को शादी के पहले दिन ही बहुत बड़ी 50 लाख की कार देना चाहता हूँ। और मैं अपने माता पिता के लिए अगर वो कहते हैं कि मुझे ये चाहिए चीज चाहिए तो वो मैं दिन भर में एक वन डे में वो चीज मैं खरीद सकूं, इतना इनकम कमाना चाहता हूँ। और दूसरा क्वेश्चन मैंने एक लेडी गर्ल्स उसको पूछा, लड़के को पूछा, तो उसने कहा कि मैंने कहा तुम्हें कितना इनकम चाहिए, तो उसने कहा कि मैम मुझे कम से कम 3 साढ़े 3 लाख रुपए पर मंथली इनकम चाहिए। वैसे आरबीआई का रेशो के अनुसार आज का इनकम जो है 1 लाख का, मतलब वो थोड़ा पर ही सेटिस्फाइड लाइफ जी रहा है। पर ज्यादा करना है, ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा करना है तो डेफिनेटली अपने पास जबरदस्त यूथ के लिए एक ऑप्शन है। तो वही मतलब जो भी यूथ के साथ मैंने मतलब थोड़ा डिस्कस किया, तो डिस्कस करने और मेरी खुद की भी यही सोच थी, मैं भी यही सोचती थी कि मैंने जैसे जो आप अकाउंटेंट मैंने जब बताया नहीं कि मैं गवर्नमेंट में थोड़ा एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करती थी एज अ अकाउंटेंट करके, तो वो मेरा एक 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो मेरा जो जॉब का टाइम था वो 9 से 7 तक, मतलब आते आते 7, और उसके बाद कुछ करना मतलब पूरी एनर्जी डाउन होती थी। और मैंने 1 साल में ही वो जॉब से इतनी मैं मतलब परेशान हो गई थी, और मुझे लगने लगा था कि अगर यही जिंदगी जीनी है और 50-60 साल यही करना है तो मुझे एकदम ऐसा लगा कि नहीं, ये नहीं चाहिए, कुछ अलग चाहिए। तो मेरे मुझे मुझे तो ऑप्शन मिल गया था, पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको और भी अभी भी मालूम नहीं है। तो मैं सभी युवा को कहना चाहती हूँ, आप ये बिजनेस, ये जो बोल रहे हैं कि बिलीव के बारे में, तो ये बिजनेस ऐसा है कि ये 65 ईयर्स पुरानी कंपनी है, 110 देशों में काम कर रही है। और हर किसी को क्या लगता है कि हम वर्ल्ड के बेस्ट कंपनी के के साथ काम करें, मतलब जो भी जॉब है, प्रोफेशन हो, एकदम बेस्ट हो, उसे पूरे दुनिया जाने, वो जो काम करते हैं उसे पहचाने, पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं, अपना टाइम अपने फैमिली के साथ, उनके जो भी उनके सपने होते हैं। और युवा को कैसे सभी ब्रांडेड चीजें पसंद होती है, जैसे बड़े बड़े आईफोन है, एप्पल वॉच है, जो भी है, सब महंगे चीजें, महंगी कारें, सब जो युवा के जो ड्रीम बोलते हैं तो अपने एकदम ऊपर से होते हैं। तो वो सभी ड्रीम सिर्फ जॉब से कभी पूरे नहीं होते। तो आपको सभी युवा को मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैंने जब देखा तो मुझे मेरा ये क्वेश्चन नहीं था व्हाई एम ये क्वेश्चन था व्हाई नॉट एम, क्योंकि मैंने सेमिनार में और वो सक्सेस प्रोफाइल में देखा था कि किस तरह ये लोग 2 से 5 साल, किसी को 10-10 साल लगे, 7 साल, फिर भी वो करने के बाद भी उनकी लाइफ एकदम जबरदस्त है। मुझे लगा कि अगर ये 50-60 ईयर्स ये करने से अच्छा है कि 5-6-7 साल हम ये एमबीए बिजनेस बिल्ड करें और अपने हिसाब से अपने मन से लाइफ जिए। और मेरा एक दूसरा सपना भी था कि जो पीएसआई का था, तो इसलिए था कि वो थोड़ा सोशल भी कर सके, वो थोड़ा सा था अपना, तो मेरा तो इससे जो इस वजह से मुझे ऐसा लगा था कि वो चुनूं। पर जब मैंने यहाँ पे देखा कि कितने लोगों ने कुछ बच्चों को एडॉप्ट किया है, किसी ने अनाथ आश्रम या वृद्धाश्रम, ऐसे बड़े बड़े ड्रीम जो थे, तो वो मेरा पूरा का पूरा जो वाय था एज ए यूथ एज में मैंने वहां पे क्लियर किया। और हर किसी को यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप आज की एज आपकी 25 हो, इसमें और 5 साल अगर आप 5 से 7 साल एमबीए में देते हो तो इज इक्वल टू 30 ईयर्स, तो आप अपने हिसाब से फाइनेंशियल फ्रीडम लाइफ जी सकते हैं। इससे बढ़िया फॉर्मूला कोई जिंदगी में हो ही नहीं सकता। मेरे तरफ से सर यस। ऑलराइट, बिल्कुल सही कहा आपने। सो यहाँ पे एक बात अच्छी मैम ने बहुत अच्छी कही कि जब भी आप किसी से यूथ को बात करने जा रहे हैं, अप्रोच करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो उन्हीं से पूछिए उनकी नीड क्या है, उनकी डिमांड क्या है, लाइफ से उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है। जब आप उनके सामने उनकी लाइफ के ड्रीम या गोल को निकाल कर सामने लाते हो ना, तो अप्रोच करना आसान हो जाता है। जैसे मैम ने बताया कि कुछ लोगों से उन्होंने बात करी और उन्होंने बताया उनका ड्रीम क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, और फिर मैम ने उसी पॉइंट को पकड़ के जो है वो पूरा प्रेजेंटेशन दिया कि तुम्हें तुम्हारे गोल या ड्रीम को अचीव करने के लिए देखो मैं ऐसे ऐसे प्लानिंग करके दे सकती हूँ। सो अप्रोच करने की जब बात आती है ना,
तो वेरी फर्स्ट थिंग इज आप उनका ड्रीम, उनका गोल सामने पूछिए उनसे, और उसको अचीव करने के लिए वो क्या कर रहे हैं वो उन्हीं से पूछिए। तो वो गारंटी वो बोलेंगे कि नहीं एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहे हैं, तो तब आप वहाँ पे उन्हें बताइए, जैसे मैम ने कहा कि एक्स्ट्रा करने के लिए उन्हें क्या करना होगा, और फिर आप एमवे अपॉर्चुनिटी को प्रेजेंट करना शुरू करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम, बिकॉज आज का जो हमारा सेशन है उसका थीम जो है वो हम लोग रिटेलिंग रखे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा होगा कि एमवे बिजनेस में रिटेलिंग जो है वो उसका क्या महत्व है, इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए जो है वो रिटेलिंग कितना इंपॉर्टेंट है। यस, थैंक यू सो मच सर। जैसे रिटेलिंग ये तो हमारे बिजनेस का ये एमबे का ही नहीं तो हर किसी बिजनेस का रिटेल ये जो पार्ट है, रिटेल नहीं तो बिजनेस ही नहीं है। कोई भी बिजनेस करता है, अगर वो जैसे देखो एक दुकानदार है, उसने अच्छे से शोरूम लगाया या दुकान लगाया, उसमें अच्छा सा माल वगैरह भराया, फर्नीचर वगैरह सब कुछ अच्छा किया है, सुबह दुकान ओपन करता है, शाम को क्लोज करता है, ऐसा उसका रूटीन है। पर उसके दुकान में कोई कस्टमर ही नहीं आता है या कुछ प्रोडक्ट के बारे में वो किसी से बात ही नहीं करता, तो वॉल्यूम होगा ही नहीं, रिटेलिंग होगा ही नहीं, और उसका बिजनेस बढ़ेगा ही नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर बिजनेस है तो रिटेलिंग ये अपने बिजनेस का अहम पार्ट है। तो रिटेलिंग कैसे की जाए, ठीक है ना। तो जैसे मैं अपने बारे में बताऊं तो एज अ रिटेल, जैसे हमारा बिजनेस है तो कुछ प्रोडक्ट रिटेल हम कब कर पाएंगे, जब हम ये प्रोडक्ट खुद यूज करेंगे, उसका एक्सपीरियंस हम लेते हैं, और वो एक्सपीरियंस हम किसी को, मतलब जब हमें एक्सपीरियंस आता है, उसके उसके बारे में थोड़ा नॉलेज आता है, एक्सपीरियंस प्लस नॉलेज इज इक्वल टू बिलीफ, हमारा बिलीफ बढ़ जाता है। और ये बिलीफ हम क्या करते हैं, जो हमारा विश्वास है प्रोडक्ट के प्रति, जैसे देखो कि मैं अभी समझो मैंने सीडीएम यूज किया है या फाउंडेशन यूज किया है, जो भी है ये जो प्रोडक्ट्स है, अगर मैंने खुद यूज नहीं किया तो इसका कॉन्फिडेंस मुझको नहीं आएगा, इसका नॉलेज मुझे नहीं आएगा। अगर ये कॉन्फिडेंस और नॉलेज मुझे नहीं है तो मैं किसी को उतने कॉन्फिडेंस के साथ बता ही नहीं सकती, क्योंकि बिलीफ ही नहीं है। तो पहली पहली बात तो ये है कि पहले हमें रिटेल के बारे में सोचना है, रिटेल से पहले हमें खुद यूज करना है, क्योंकि हमारे पास बहुत जबरदस्त ऐसी रेंज है एमवे में, सभी जैसे 150 प्लस प्रोडक्ट फिलहाल अपने इंडिया में है, और उससे भी ज्यादा हर महीने में नए नए प्रोडक्ट्स आ ही रहे हैं। तो सभी प्रोडक्ट्स एज अ एमवे डिस्ट्रीब्यूटर करके हमें हमारे यहाँ होनी जरूरी है, और उस प्रोडक्ट का नॉलेज अच्छी तरह से, क्योंकि आज की दुनिया बहुत स्मार्ट है, दुनिया स्मार्ट है, इससे पहले हमें खुद स्मार्ट होना है। हमारे जो प्रोडक्ट है, अगर ये प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से नॉलेज हमारे पास नहीं है तो हम पकड़े जाएंगे। इसलिए आपको ये प्रोडक्ट का नॉलेज अच्छा रखना है, और ये प्रोडक्ट का नॉलेज आपके पास अच्छा आता है तो आप डेफिनेटली बिलीव के साथ लोगों को रिटेल कर सकते हैं। तो रिटेल की और मैं कुछ बताना चाहती हूँ रिटेल के बारे में। जैसे देखो कि रिटेल एक ऐसी बात है कि जैसे हमने कुछ कम्युनिटी ज्वाइन की है, जैसे हेल्थ वेलनेस वॉरियर करके कम्युनिटी है, उसके बाद एक ब्यूटी सेशन करके है, जो ब्यूटी स्पा पार्ट होता है। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे यूथ ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि अपने जो इंडिया है 65% युवा है, और ये युवा जो है, युवा ही हमारा बिजनेस वॉल्यूम मतलब बनाने वाले, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोडक्ट तो युवा ही यूज करेंगे। तो उनके हिसाब से हमारे पास सभी प्रोडक्ट्स, अगर कोई हेल्थ के रिलेटेड हम देखें तो सभी हेल्थ पूरा न्यूट्रलाइट है हमारे पास, तो वो हम रिटेल कर सकते हैं। उसके बाद कॉस्मेटिक में देखें तो हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे कॉस्मेटिक में भी प्रोडक्ट है, तो हर तरह हम रिटेलिंग कर सकते हैं। तो हमारा रिटेलिंग इज इम्पोर्टेंट। और देखो जैसे कुछ लोग होते हैं उनका माइंडसेट ऐसा रहता है बिजनेस ही करना है ना, तो रिटेल करें या लोगों को ज्वाइन करें। तो मेरा कहना है कि आप सिर्फ लोगों को जोड़ते जाएंगे, इन्वॉल्व करते जाएंगे, और वो जो आदमी जो भी लोग आपसे जुड़ रहे हैं, वो अगर कुछ भी परचेस ही नहीं कर रहे हैं या कुछ यूज ही नहीं कर रहे हैं और किसी को बता ही नहीं रहे हैं, तो वॉल्यूम कैसे होगा। तो वॉल्यूम सेंट्रिक बिजनेस होने की वजह से हमें खुद को ये प्रोडक्ट खुद यूज करने हैं, और अच्छे से उसका नॉलेज लेना है, और वो नॉलेज और एक्सपीरियंस के साथ हमें लोगों को वो बताना है। और पहले टाइम में जैसे रिटेल की बात करूँ तो मैं मेरा अपना ही एक बताती हूँ। उस टाइम 2 साल पहले की बात है कि मुझे फेसबुक इंस्टा इन सब से थोड़ा सा ये था, इस पे टाइम पास करने जो करते हैं वो था थोड़ा सा। पर 2 साल के बाद जैसे कोविड आया, उस टाइम हमारा पूरा माइंड ओपन हो गया। तब कोविड के टाइम में सब लोग मतलब सोच रहे थे कि क्या करें, कैसा दिन बिताए। उस टाइम में हम पूरे बिजी थे, क्योंकि उस टाइम में हमारी जूम पे मीटिंग होती थी, ट्रेनिंग्स होती थी, हम गूगल मीट करते थे, मतलब घर पे थे, पर कैसा दिन जा रहा है वो भी नहीं पता चलता था। और बाकी लोग सोच रहे थे, बाकी लोग कुछ
डिशेस बना रहे थे, नए नए डिशेस सीख रहे थे और हम अपना बिजनेस बढ़ा रहे थे। और उसी दौरान ये कोविड के दौरान सभी के लिए कोविड थोड़ा सा बुरा रहा है पर हमारे लिए एकदम बढ़िया रहा है, क्योंकि कोविड सिचुएशन में हम सिल्वर प्लैटिनम गोल्ड, मतलब सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम फाउंडर प्लैटिनम, ये चारों एक ही साथ, मतलब एक ही साल में हमने एक 2 साल में पूरा कोविड के सिचुएशन में पूरा किया। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो हम रिटेलिंग के बारे में बात कर रहे थे, तो ये रिटेलिंग जो है हम आज, पहले हम ऑनलाइन ऑफलाइन करते थे, तो हमने थोड़ा सा सिस्टम चेंज किया क्योंकि हमने कुछ सीखा। जब हमें मालूम पड़ा कि जैसे एक मेरे टीम की लीडर ने मेरा एक वीडियो था जो यूट्यूब पे डाला था, मुझे भी नहीं मालूम था, तो वो मेरे किसी रिलेटिव ने देखा था, तो उसने मुझे पूछा कि आप ये करते हो, ऐसा मैंने वीडियो आपका यूट्यूब पे देखा। तो तब मुझे लगा कि अरे हम यूट्यूब पे डालेंगे या इंस्टा पे डालेंगे तो हम मतलब लोग आगे से पूछेंगे कि क्या है। अभी देखो मैं फेसबुक पे या इंस्टा पे डालती रहती हूँ, तो लोग, मैं उनके घर पहुंचने के पहले ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पहले उनके घर पहुंच जाती हूँ। तो अच्छा लगता है जब आपको पूछा जाता है, अब वो वही मैम हो ना जो आप फेसबुक पे एमबी के बारे में डालते हैं या इंस्टा पे डालते रहते हैं, वर्कआउट करते रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सभी युवा को ये कहना चाहूंगी कि युवा एकदम एक्टिव होता है, क्रिएटिव होता है और वो हर चीज कर सकता है। और वो अपने मन से हर तरह से, अगर उसने ठान लिया कि उसे करना ही है, बिजनेस करना है, रिटेलिंग करना है, पहले तो रिटेलिंग करने के पहले उसे वाई क्लियर करना है कि ये बिजनेस क्यों करना है। अगर उसका वाई क्लियर हो जाता है तो रिटेलिंग के हर ऑप्शन चूज करेगा। क्योंकि मुझे भी कोई, मतलब मैंने जब स्टार्ट किया तो मेरे ऊपर कोई लेडी लीडर नहीं थी, तो मैंने क्या किया, मैंने जो जो अपने ऊपर आगे ऊपर के जो लीडर है, डायम्स है, ब्लड्स है, वो कैसे बातें करते हैं, वो कैसे वीडियो बनाते हैं, तो देख देख के सब किया। तो अगर किसी चीज की अगर इच्छा हो आपको करने की, तो आप वो चीज सीखी जाती है। सिर्फ अंदर से वो इच्छा होनी चाहिए कि मुझे कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है। तो युवा इसमें बहुत मास्टर है। और तो सर, राइट, दैट्स वंडरफुल। सो बहुत सारी बेसिक डिटेल्स आप प्रोवाइड कर रही हैं। इसी के साथ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि आपने अभी रिटेलिंग का इंपॉर्टेंस तो बता दिया, लेकिन जब हम उनको प्रोडक्ट्स बताएं तो किस तरह से हम उनको प्रोडक्ट प्रेजेंट करें, प्रोडक्ट्स का रिटेलिंग हम किस तरह से करें। और साथ साथ एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि स्पेशली यंग जनरेशन के लिए प्रोडक्ट कौन कौन से आप रेकमेंड करना चाहोगे, क्योंकि yes. सारे प्रोडक्ट तो हम नहीं दे सकते, उनको सारे प्रोडक्ट नहीं बता सकते एक बार में। तो सेलेक्टेड वो 10 12 15 प्रोडक्ट कौन कौन से होने चाहिए जो यूथ को अट्रैक्ट करेंगे, और जब हम उन प्रोडक्ट्स को बता रहे हैं तो कैसे हम उन्हें बताएं, उसकी रिटेलिंग हम कैसे करें। थैंक यू सर। जैसे यूथ के हिसाब से जो प्रोडक्ट बोले, तो आज का यूथ जो है थोड़ा अवेयर, मतलब कॉन्शियस हो गया है अपनी स्किन के बारे में, अपने हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ रिलेटेड तो अपने पास न्यूट्रलाइट है, उसमें हम एक्सेस वे प्रोटीन बता सकते हैं, बॉडी की बता सकते हैं, और अपना स्टैमिना बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये जो यूथ है वो ज्यादा एक्टिविटी करता है, तो उसका एनर्जी लेवल भी मेंटेन रहने के लिए हम उसको मल्टीविटामिन दे सकते हैं। एनर्जी, जैसे आज रेड बुल वगैरह बहुत से थोड़ा सा ट्रैवलिंग करते हैं, तो वो थोड़ा पीने की, ट्रैवलिंग में थोड़ा एनर्जी के लिए, थोड़ा स्टैमिना के लिए बहुत से देते हैं। तो अपने पास एक्सेस एनर्जी ड्रिंक भी है, उसमें भी बहुत सारे फ्लेवर है। तो मैंने मेरे पास कुछ प्रोडक्ट भी रखे हैं। तो स्पेशली यूथ का, अब तक का जो भी वर्कआउट करते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा एक्सेस, ये मैं सजेस्ट करती हूँ, एक्सेस वे प्रोटीन। और उसके बाद जैसे बॉडी की जो वेट लॉस, वेट मेंटेन प्रोग्राम करना चाहते हैं, उसके लिए भी ये मैं बॉडी की जैसे वेनिला और चॉकलेट फ्लेवर है वो सजेस्ट करती हूँ। और स्टैमिना बिल्ड करने के लिए हमारे पास डेली मल्टीविटामिन है, ये सजेस्ट करती हूँ। और उसके साथ अपना हार्ट अच्छा रहे 10 साल, और हम जवान, हृदय अपना जवान रखे, इसलिए हम ओमेगा 3 है, ये सजेस्ट करते हैं। और आज का युवा जो है बहुत सारे काम कर रहे हैं, पर कहीं वो, मतलब ऐसा हो रहा है कि विटामिन डी की भी कमी हो रही है, तो हम विटामिन डी भी उनको सजेस्ट करते हैं। तो ये तो हुआ हेल्थ रिलेटेड सभी प्रोडक्ट बारे में। और मैं इसके स्पेशली कॉस्मेटिक और कॉस्मेटिक पार्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो लेडीज ही यूज करते हैं, इसमें जेंट्स भी। जैसे मैंने 2 दिन पहले एक लड़का है 18-19 ईयर्स ओल्ड, उसको मैंने पूछा कि मेरे पास जबरदस्त एम्वे के अच्छे से प्रोडक्ट है, तो कुछ रेंज है, तो उसने बोला कि मैम मुझे कुछ नहीं, सिर्फ एक हेल्थ के लिए मैं जिम है, तो उसके हिसाब से मुझे कोई प्रोटीन बता दो, और मुझे स्किन एकदम ग्लो करनी चाहिए, और एकदम जब भी मुझे कोई देखे एकदम फर्स्ट इंप्रेशन पड़ना चाहिए, ऐसे मुझे कोई क्रीम दीजिए। तो मैंने कहा मेरे पास एकदम जबरदस्त रेंज है स्किन न्यूट्रिशन करके, तो वहां से मेरी ऑर्डर भी निकली। तो मैंने उनको सजेस्ट किया एक सीटीएम करके
क्लिंजर टोनर, स्किन न्यूट्रिशन का अपना आगे एक है, उसके बाद टोनिंग के बारे में बताया, उसके बाद एक डे क्रीम नाइट क्रीम भी है, वो भी बताया, और एक नॉर्मल से अगर कोई है तो उनको मैं इसकी सनस्क्रीन वगैरह सजेस्ट करती हूँ। ऐसे बहुत से प्रोडक्ट है। और जैसे मेकअप बोले तो ग्रूमिंग के पार्ट में के बारे में बताए, तो जैसे फाउंडेशन वगैरह वो मैं उसके बारे में बताती हूँ कि फाउंडेशन हम मार्केट से प्राइमर कॉन्सिलर वगैरह बहुत सी चीजों में बहुत से पैसे खर्च करते हैं, तो इसकी वजह एक ही ऐसा यूनिक अपना फाउंडेशन है जो 24 आवर्स रहता है। और मतलब ये सभी चीजें ऐसी है कि आज के युग को टाइम कम चाहिए और कम टाइम में एकदम बढ़िया सा रिजल्ट चाहिए। और आज का यूथ है, उसको अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी मिलती है तो वो पैसे पे करने के लिए भी रेडी है, सिर्फ उसको हम हमारे जो प्रोडक्ट है उसमें थोड़ा वैल्यू दिखना चाहिए। अगर वो प्रोडक्ट में उसको वैल्यू दिखता है तो वो डेफिनेटली परचेज करने के लिए रेडी रहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सभी युवाओं के लिए एक जबरदस्त प्रोडक्ट है माउथ फ्रेशनर, जो हर कोई अपने पॉकेट में लेके मतलब हमेशा रख सकता है। तो ऐसे हमारे पास बहुत से प्रोडक्ट है। फिलहाल तो मैंने कुछ ही प्रोडक्ट बताए जो कि यूथ के लिए। और हमारे पास कलर कलर कॉस्मेटिक की रेंज भी है एटीट्यूड में, जैसे कॉम्पैक्ट से लेके एटीट्यूड का लिपस्टिक्स भी है। ऐसे बहुत से प्रोडक्ट हमारे पास, नेल पेंट्स वगैरह, ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स हैं। मतलब आज का जो यूथ है वो चाहता है कि अच्छा दिखे, अच्छा ग्रूमिंग हो, उसकी पर्सनालिटी अच्छी दिखे, उसका हेल्थ अच्छा हो। ये सभी जो यूथ की जो डिमांड है, जो आज की नीड है, उसके हिसाब से हमारे पास प्रोडक्ट्स है। और इसके इंटरनली बॉडी के लिए भी हमारे पास, मतलब हेयर स्किन सुंदर दिखे इसके लिए हमारे पास वाइटिंग चेरी प्लस करके है। तो ऐसे हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट है। सिर्फ ये प्रोडक्ट का एक ही कहना है कि ये प्रोडक्ट हमें खुद यूज करने हैं और ये प्रोडक्ट का रिजल्ट हम भी दिखना चाहिए, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। तो मैंने तो बहुत मतलब जैसे मेरे बाल पहले इतने सॉफ्ट सिल्की नहीं थे, थोड़े रफ टाइप से थे, और पहले मैं खुद कंडीशनर भी नहीं यूज करती थी क्योंकि कंडीशनर का यूज ही नहीं मालूम था। जब मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में खुद यूज किया, उसके रिजल्ट देखे, और जब मुझे बालों में फर्क दिखा, तब से मैंने मतलब दूसरों को भी, जब हम खुद यूज नहीं करेंगे, उसका नॉलेज नहीं लेंगे, तो हम दूसरों को डेफिनेटली बता ही नहीं पाएंगे। तो पहले तो हमें खुद ये सब करना है, और इसी हिसाब से हम यूथ के लिए हमारे पास बहुत से प्रोडक्ट है। और तो सर सो मैम ने जो यहाँ पे पॉइंट्स प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं, यकीन मानिए ये वो चुनिंदा प्रोडक्ट्स हैं जो इजीली रिटेल हो जाते हैं। इनके अलावा आप चाहो ना, डिओड्रेंट सेट्स जो है अपने 5 पीस का जो डिओड्रेंट सेट है वो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। आप चाहो तो अभी कुछ ना कुछ बार बार लगता रहता है फ्रेंड्स के बीच में जो है, उनको कभी उनको गिफ्टिंग ऑप्शन लगता है, कभी बर्थडे है, कभी कुछ है, तो आप 5 पीस का गिफ्टिंग सेट जो है वो आप दे सकते हो। नेल लिपस्टिक का जो पैक है वो एक बहुत बढ़िया गिफ्टिंग ऑप्शन है जो यूथ को आप इजीली अप्रोच कर सकते हो। इसके अलावा डायनामाइट की जो रेंज है दैट कैन आल्सो बी एडेड। डायनामाइट की रेंज आप देखो, ऐसे प्रोडक्ट है जो सिलेक्टेड, अगर आप 15 प्रोडक्ट की शॉर्टलिस्ट कर लो ना, हर यूथ यूज करता है। जो मैम ने बताए और जो मैं ऐड कर रहा हूँ, ये सारे प्रोडक्ट हर यूथ यूज करता है, लेकिन दूसरे ब्रांड के, दूसरे कंपनी के। तो हमें यहाँ पे वही करना है, जैसा मैम ने कहा कि स्विच करवाना है, दूसरे ब्रांड से अपने ब्रांड में स्विच करवाना है। और ये तभी पॉसिबल है जब आप खुद यूज करते हैं, जब आपके पास टेस्टिमोनियल है, जब आपके पास एक्सपीरियंस है उन प्रोडक्ट्स का, जो दिखेगा कि हाँ भाई ये खुद यूज करते हैं, तो वो कस्टमर परचेज करेगा। सो मैम, इसके बाद एक और क्वेश्चन मुझे आता है कि बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम जो हमें आती है ना, वो है यूथ को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में। तरह तरह की सिचुएशंस में हमें यूथ के साथ बहुत सारे तरह तरह के ऑब्जेक्शंस आते हैं। चाहे अगर उन्हें हमें बिजनेस ज्वाइन करवाना हो तो भी कई सारे ऑब्जेक्शन आते हैं, और जब हम उन्हें प्रोडक्ट्स रेकमेंड करते हैं तो भी कई सारे ऑब्जेक्शंस आते हैं। तो क्या आप वो उन ऑब्जेक्शंस के बारे में थोड़ा सा लाइट शेयर कर सकती कि क्या क्या ऑब्जेक्शंस आते हैं और उन्हें हैंडल कैसे करना है, आंसर कैसे करना है? यस सर, थैंक यू सर। और इसमें थोड़ा सा रह गया वो मैं बताना चाहती हूँ। जैसे हमारे पास डिओडेंट कलर है, वेरियस टाइप्स ऑफ डिओडेंट है। और मैं एक बताना चाहती हूँ कि मैं क्या करती हूँ कि आज के जो कस्टमर है वो पहले इतने सालों से बाहर से प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, तो उतना कुछ रिजल्ट भी नहीं है। और मैंने इसमें अपनी तरफ से कुछ ऐड करता रहा, मैं क्या करती हूँ, उनका वीडियो निकालती हूँ, उनको बोलती हूँ कि दीदी ये आप यूज करें, मैं आपका वीडियो ले सकती हूँ। तो वो उनको बहुत अच्छा लगता है, अरे मेरा वीडियो भी ले। मैं अब कितने सालों से बाहर से प्रोडक्ट यूज करती थी, पर मुझे किसी ने पूछा भी नहीं, सारी दुकानदार ने कभी कुछ गिफ्ट दिया भी नहीं, पर ये दीदी आती है कुछ ना कुछ, कभी नेल पेंट देती है, कभी एक आधा नया डीओ है वो भी फ्री देती है, और वीडियो भी निकालती है। तो मैं अपने तरफ से ये करती हूँ। इससे क्या होता है, मेरे कस्टमर हमेशा के लिए टिके रहते हैं, और वो खुद उनकी तरफ से मुझे वो वेटिंग पे रहते हैं कि वो दीदी आएंगी और वो मुझे प्रोडक्ट देके जाएंगी, वीडियो निकालेंगी, वो सब
मतलब आज के ट्रेंड में अगर ये हम करते हैं तो हमारे जो कस्टमर है वो हमेशा के लिए रेडी रहेंगे। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे सर ने पूछा है कि ऑब्जेक्शन, तो ऑब्जेक्शन ये तो बिजनेस है और हम अच्छे अच्छे लोगों के साथ बिजनेस कर रहे हैं, अच्छे अच्छे लोगों को हम अपने बिजनेस में लाना चाहते हैं, तो ये क्वेश्चन तो आएंगे ही, ऑब्जेक्शन आएंगे ही। तो मैं अपने मेरे बारे में मतलब ऑब्जेक्शन के बारे में बताना चाहती हूँ कि पहले जब लोग कहते थे कि प्रोडक्ट महंगे हैं, तो ज्यादा से मतलब 80 to 90% मैंने अब तक जब 7 सालों में बिजनेस में देखा, तो प्रोडक्ट महंगे हैं, ये ज्यादा क्वेश्चन मुझे आया है। तो इसके बारे में मैं पहले जब नॉलेज नहीं था तो तब मैं बोलती थी कहाँ पे मैंने महंगे है, आर्गुमेंट होता था। जब मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लिया, थोड़ा सा समझा कि कस्टमर के साथ ऐसे नहीं बात करते हैं, वो कहते थे महंगे हैं, मैं कहती थी कि नहीं महंगे हैं, ये आर्गुमेंट चालू हो जाता था। पर जब मुझे सिस्टम से या अपने जो सीडी बुक से या वहां से जब मतलब सीखी मैं कि कैसे हम कस्टमर को हैंडल करें, वो भी कह रहे हैं महंगे, आप नहीं कह रहे, तो वो बातचीत ही नहीं बढ़े, वो आगे ही नहीं बढ़ेगी, वो फिलहाल थोड़ी देर के लिए ठीक है मान लेंगे, हाँ ठीक है, पर वो बाद में हमें उतना चाहे वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा खुद को चेंज किया। तो हमें नॉलेज भी मिलता है, यहाँ पे सपोर्टेड टीम होती है कि हमें कैसे बात करनी है, कैसे कस्टमर के साथ डील करनी है, मतलब वो फॉलोअप वगैरह रहता है। तो मैंने अच्छी तरह से सीख लिया कि कैसे। तो ऑब्जेक्शन के बारे में भी बताना चाहती हूँ कि लोग जब कहते हैं महंगे हैं, तो मैं यहाँ पे फिल फॉन्ट की डेफिनेशन यूज करती हूँ। पहले नहीं करती थी पर अभी थोड़ा सीख गई तो करती हूँ। और जब वो कहते हैं कि महंगे है तो मैं दीदी एकदम आपने सही कहा, क्योंकि मैंने जब ये प्रोडक्ट देखे था ना तो मुझे भी ऐसे ही लगा, मुझे भी ऐसे प्रोडक्ट ये महंगे लगे थे। जैसे मैं शुरुआती में शादी करने मतलब वो जो एसेट था, जैसे उन्होंने बताया बैचलर थे तो उनके या इसमें रूम में मैंने एसेट देखा था कपड़े धोने का। तो वो जो एसेट था वो 1 लीटर का 800 समथिंग कुछ था। और वो एसेट शादी होने के बाद भी मुझे 1 साल पूरा, मतलब 6 महीने पहले और शादी होने के बाद, मतलब 1.5 पौन 2 साल वो जो पूरा 1 लीटर का। तो पहले तो मैंने उसकी कीमत मतलब एसेट देखा, फिर उसको पीछे पलट के देखा, तो उसकी कीमत देखी तो मुझे लगा बाप रे इतना महंगा, ये थोड़ा सा 30-40 में तो दूसरा ब्रांड का आ जाता है। पर जब वो एसेट हमें 1.5 पौन 2 साल जब चला, तब मुझे क्लियर हुआ कि ये जो प्रोडक्ट है जब तक हम खुद यूज नहीं करेंगे और खुद को जब हम मतलब वो कॉस्ट क्वालिटी कॉस्ट पर यूज जब मैंने देखा, उसका कॉन्सेंट्रेशन पावर देखा, तो तभी लगा कि नहीं ये प्रोडक्ट एकदम बढ़िया है। और कुछ साल पहले की बात है कि शादी के पहले जैसे मार्केट का जो जो डिश वॉश वगैरह जो कपड़े धोने का था, तो उससे ना मेरे थोड़ा इचिंग प्रॉब्लम, हाथों पे थोड़ी सी जलन होती थी, इन्फेक्शन होता था, हाथों में ऐसी आग सी होती थी। तो जैसे ये कपड़े ये जो लिक्विड का था तो इससे मुझे एकदम बढ़िया रिजल्ट आया। तो एक प्रोडक्ट वो था। और सेकंड प्रोडक्ट ये था कि जैसे ब्लिस्टर के बारे में बताना चाहिए। आज हमारे बिजनेस में एंट्री ब्लिस्टर पेज की वजह से हुआ है। हो सकता है मामूली सा लगता हो, पर ये पेज भी अगर किसी के घर में जाता है तो वो बिजनेस ओपनिंग डोर मतलब एक स्टार्टअप हो सकता है। क्योंकि मेरे मिस्टर को पेज दांतों का थोड़ा प्रॉब्लम था, मेरी सास है और मेरी ननद भी और मिस्टर, तीनों का थोड़ा ब्लडिंग दांत से मतलब टिप से ब्लड आता था। बहुत से मेडिकल में ऑलरेडी मेडिसिन का होलसेल फार्मा बिजनेस होने की वजह से उनके पास हर टाइप के पेस्ट थे। उन्होंने इतने साल पेस्ट यूज भी किए पर कभी भी उनको दांतों को रिलीफ नहीं मिला। तो ये सिर्फ ब्लिस्टर पेस्ट की वजह से, तो वो रिलीफ वो जब मैं एक्सपीरियंस लोगों को बताती हूँ तो मेरे इससे ये एसिड है या ग्लिस्टर है ऑटोमेटिक चला जाता। और मेरा हर टाइम ये फोकस रहता है किसी को सिर्फ एक मतलब एक प्रोडक्ट बड़ा महंगा सिर्फ क्रीम देने के बजाय मैं ये सोचती हूँ कि उतने ही रेट में क्यों ना हमारे 3-4 प्रोडक्ट चले जाए। क्योंकि क्या होता है कभी कभी हम ये जो क्रीम देते हैं तो वो एक ही लेडीज घर की सिंगल लेडीज ही यूज करती है, और वही प्राइस में अगर हम 3-4 प्रोडक्ट्स अगर देते हैं तो वो फैमिली के सभी प्रोडक्ट यूज कर सभी लोग यूज करते हैं और उनका एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा रहता है। तो ऑब्जेक्शन के बारे में वही घूम फिर के क्वेश्चन आता है कि ऑब्जेक्शन तो आते ही रहते हैं, पर वो ऑब्जेक्शन ऐसा पार्ट है कि जेन्युइन क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि ये ऑब्जेक्शन ऐसा है कि हम ऐसी एग्जाम देने जा रहे हैं जहाँ पे क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर क्या देना है वो हमें सब मालूम है। और जब हमें ये सब मालूम है तो सक्सेस के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। लोग ज्यादा से ज्यादा महंगे हैं ऐसा आता है। और उसके बाद और एक क्वेश्चन आता है कि जैसे ये जो प्रोडक्ट आप बता रहे हैं
आपकी बात सब ठीक है, पर ये सभी प्रोडक्ट ऑलरेडी अमेजोन है या फ्लिपकार्ट है, मीशो है, इन सब वेबसाइट पे मिलते हैं, तो हम आपसे क्यों लें? ऐसे कुछ क्वेश्चन रहते हैं, तो मैं उनको ऐसे हैंडल करती हूँ कि देखो दीदी, कि आप बोल रहे थे एकदम बराबर बोल रहे हैं, लेकिन जो आप अदर वेबसाइट से जो प्रोडक्ट ले रहे हैं, क्या उसकी कोई गारंटी है? अगर आपको समझो ये प्रोडक्ट यूज किया और उसके कुछ साइड इफेक्ट हुआ, तो क्या वो रिटर्न लेने की पॉलिसी है? वो बोलते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप एक सोचो ना दीदी, जो लीगल वेबसाइट है, जो एमवे की ऑथोराइज लीगल वेबसाइट है, इससे आप प्रोडक्ट परचेस करते हैं, और आपको अगर कुछ अच्छा भी नहीं लगा, 30% यूज करने के बाद, 33% यूज करने के बाद आपको अच्छा भी नहीं लगा, तो भी हम 30 दिन के अंदर वो टैक्सेशन जीएसटी वगैरह काट के आपको प्रोडक्ट की जो कीमत है वो दे सकते हैं, या उसकी वजह दूसरा और कोई प्रोडक्ट आता है तो वो भी बुला के दे सकते हैं। इसका हमें उनसे डील करनी पड़ती है कि जो प्रोडक्ट है, ये ऑब्जेक्शन जो प्रोडक्ट के बारे में या बाकी अदर वेबसाइट के बारे में आते ही रहते हैं, पर हम उनको बता सकते हैं कि आप वहां से लेते हैं तो आपको सिर्फ प्रोडक्ट मिलेगा, और उसकी कोई गारंटी भी, मनी बैक गारंटी भी नहीं है, कोई रिटर्न पॉलिसी भी नहीं है, तो कोई ऐसा ये नहीं है। पर अगर आप मेरी तरफ से लीगल वेबसाइट, मतलब आप खुद ज्वाइन करते हैं या खुद कस्टमर बनना चाहते हो, तो आपको मैं ये प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी भी दे सकती हूँ। ये प्रोडक्ट मैं आपके होम डिलीवरी आपके पास पहुंचा, इंस्टेंट पहुंचा भी सकती हूँ, और उसके बाद ये प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है तो आप कुछ पैसे भी कमा सकते हो, अच्छा एक लेगेसी इनकम भी कमा सकते हैं, और आप हमारे साथ बिजनेस पार्टनर बन के ये बिजनेस में पूरा वर्ल्ड ट्रिप वगैरह जो भी है वो सब आप एंजॉय कर सकते हैं। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आते हैं सर। ओके, सो एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने कवर किया मैम। यहाँ पे प्राइस को लेकर क्वेश्चंस तो आता ही है, साथ साथ जो और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे प्रोडक्ट मिल रहे हैं उसको लेकर भी क्वेश्चंस आते हैं, और ये दोनों को कैसे आंसर करना है ये आपने बहुत अच्छे से बताया। इसके अलावा एक चीज अगर आप लोगों ने ध्यान रखी होगी, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो होती है वो होती है प्रिपरेशन। सवाल जो है वो आज नहीं आ रहे हैं, ये सवाल कई सालों से आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे, बट क्या आप उसके लिए तैयार हैं? क्या आपने प्रिपरेशन किया हुआ है कि क्या आंसर करोगे? क्या आपको खुद जो है वो अपने प्रोडक्ट का नॉलेज है? अगर ये सारी चीजें आप करके रखते हैं तो आप पूरी तरीके से तैयार है उन ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने के लिए, फिर वो चाहे एक यूथ पूछे या फिर वो कोई A35 का एडीएस पार्टनर पूछे। सो विद दिस मैम, एक लास्ट चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कुछ अगर 5 बातें मैं आपको बोलूं कहने के लिए यहाँ पे, जो हमें फोकस करनी चाहिए युवाओं के लिए, सो वो 5 बातें, कोई मैसेज अगर आप देना चाहें तो वो कुछ कुछ बातें क्या होगी? ओवर टू यू। यस, थैंक यू सर। जैसे युवा के बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि युवा एक ऐसा है कि जो हर कोई चीज कर सकता है, हर कोई वो जो ठान लेता है। जैसे शुरू के दिनों में, जैसे एक हम 21 से लेकर 35 तक देखें तो सभी युवा है, और युवा हमारे यहाँ 65% युवा है, और सभी युवा के जो बोले ड्रीम बोले तो इतने बड़े बड़े हैं, और वो ड्रीम के हिसाब से हमारे यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी उतनी नहीं है। तो हम सिर्फ जॉब के पीछे न भागते हुए, यहाँ पे कितने, जैसे हमारे पास इतनी बड़ी कंपनी का बैकग्राउंड है, पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में कंपनी 110 देशों में काम करे, 165 इयर्स पुरानी कंपनी है, इतना बड़ा बैकग्राउंड है, और हर टाइप के लोग है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही लोग कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसे कौन से व्यक्ति नहीं है, यहाँ पे हर टाइप के लोग हैं। और सभी को यही कहना चाहूंगी कि देखो, अभी आपकी जो भी एज है, किसी की 30 हो या 35 हो, जो भी हो, जो भी आपकी एज है, उसमें से 5 साल के लिए या 7 साल के लिए खुद को एमबीए में डाल दो। जो जो एमबीए कहता है, जो जो यहाँ पे बताया जाता है वो कर दो, करो। और उसके आगे इज इक्वल टू देखेंगे तो आपको जो लाइफ में चाहिए, जो आर्थिक स्वतंत्रता बोला जाता है, वो फाइनेंशियल फ्रीडम बोला जाता है, वो सभी, मतलब 60 ईयर काम करने की वजह हम अब 5 से 7 साल काम अच्छी तरह से काम करेंगे तो अपनी जो भी ड्रीम है, हम जो भी चाहते थे वो सभी हम यहाँ से कर सकते हैं। और ये बताना चाहती हूँ कि सब युवा युवा सब कर सकते हैं, तो आंदे क्यों नहीं कर सकता? और ये मैं बताना चाहती हूँ कि दिस इज, ये जो टाइम है, दिस इज राइट टाइम, और विद राइट कंपनी, विद राइट प्रोडक्ट्स एंड विद राइट यू, इससे ग्रेट अपॉर्चुनिटी कहीं पे नहीं होगी, और इससे ग्रेट प्रोडक्ट कहीं पे नहीं होगा, और इससे ग्रेट सिस्टम, जैसे हमारे पास गुरुकुल लॉन्च हुआ है, तो हमें जो, मतलब कहीं पे हम काम करते हैं तो हमें उतना सपोर्ट भी नहीं होता, पर यहाँ पे आप अकेले आते हो, पर आपको पूरी टीम, हायर ड्रीम मतलब सपोर्ट करती है, एमवे पूरा सपोर्ट करता है। और एक कहना चाहूंगी कि देखो, एमवे का रिश्ता वही है, सिर्फ सोच नहीं है,
और एमवे जो सोशल मीडिया के साथ हमें आगे लेना चाहता है। तो स्पेशली हमें यही कहना है कि वैसे भी यूथ लोग जो है ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन रहते हैं, अपना टाइम मोबाइल पे लैपटॉप पे डालते ही रहते हैं, तो क्यों ना वो टाइम अपने फ्यूचर के लिए, अपनी लेगेसी क्रिएट करने के लिए बिल्ड करें। अगर हम ये करते हैं तो जैसे मतलब बहुत से ऐसे लीडर्स, मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना टाइम बहुत से मतलब हर टाइम बोलते हैं कि मैं बिजी हूँ, पर जब हम उनको ऑनलाइन देखते हैं, ऑनलाइन दिखते हैं, तो मतलब वो सिर्फ कहने के लिए कहते हैं कि बिजी है। अगर वही उन्होंने टाइम अपने लाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, क्योंकि एक कहना है कि देखो आप आज जॉब करने का डिसीजन ले रहे हैं तो आप कितने साल पीछे जा रहे हैं, क्योंकि मतलब जो अभी का ट्रेंड है, अभी नेटवर्क मार्केटिंग का ट्रेंड है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ये पूरा फॉर्म्स बता रहे हैं कि अभी का जो सिचुएशन है वो नेटवर्क जो बिल्ड करेगा उसी का वो उस टाइम का किंग रहेगा। तो उस हिसाब से हमारे पास बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म है एमवे। तो अगर इससे हम अपना पूरा टाइम निकाल के थोड़ा सा जो भी आपका शेड्यूल है उसे पार्ट टाइम में डाल के ये करते हैं, क्योंकि आज देखो मैंने अपना जॉब छोड़ के, मेरे पास भी बहुत से चॉइस थे। और स्पेशली मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने जब स्टार्ट किया तो मैं युवा ही थी, मतलब आज भी युवा हूँ। 22 इयर्स के एज में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, तो तब के टाइम में बहुत से ऐसे क्वेश्चन थे कि क्या ये हमारे लिए है, ये हमारे टाइप का है। पर जब मैंने देखा कि नहीं नहीं ये तो इससे भी अच्छा है, मतलब इतने बड़े बड़े लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। और युवा ने स्पेशली अपने, अगर इंडिया को बहुत बड़े मतलब वो सोने की चिड़िया बोलते हैं उस टाइप में लेके जाना है, तो सच में एमवे बिजनेस के दूसरा पर्याय नहीं है। हमें एमवे बिजनेस ही करके वो सारे जो ड्रीम है जैसे बोलते हैं तो हम ये यहाँ से कर सकते हैं। यस सर। That's wonderful, मैम। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने शेयर किए हैं रिलेटेड टू एम्पावरिंग यूथ। सो पार्टिसिपेंट्स, कैसा लगा आपको आज का ये कार्यक्रम, जहाँ पे आपने रिटेलिंग के बारे में जाना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में जाना, प्रोडक्ट्स के बारे में जाना कि वाई जन कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स कौन से अप्रोच करने चाहिए। सो कैसा लगा आपको सेशन? आप चैट विंडो पर अप्लाई कर सकते हैं, रिएक्शंस शेयर कर सकते हैं, और कंप्लीट करने से पहले, क्लोज करने से पहले एक छोटा सा पोल, एक छोटा सा सर्वे हम करना चाहेंगे। बट बिफोर दैट वुड लाइक टू थैंक आवर टुडे स्पीकर। आज के हमारे जो खास स्पीकर हैं उनको हम धन्यवाद करना चाहेंगे। थैंक यू दिशा मैम, थैंक यू सो मच कि आपने अपना समय निकाला और हम सभी को एम्पावरिंग यूथ के बारे में सिखाया, समझाया। आशा करते हैं बहुत जल्दी हम आपसे दोबारा मुलाकात करें, आपके गोल के साथ, आपके टारगेट के साथ जो आपने अपने घर में रखा हुआ है, न्यू एमरल्ड। सो विश यू ऑल द बेस्ट मैम, एंड थैंक यू। थैंक यू। सो पार्टिसिपेंट्स, आपकी स्क्रीन पे एक पोल आने वाला है, आप सभी को उस पोल के जरिए जो है वो आंसर करना है और बताना है। जस्ट अ मोमेंट, आई विल जस्ट शेयर इट। जुड़े रहिए, कहीं जाइएगा मत। जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज। मैं आप सभी के साथ एक पोल शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पे। आपको बताना है कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये आपको पोल के जरिए रिप्लाई करना है। ओके, सो आपकी स्क्रीन पे पोल आ चुका है। आप अपना आंसर भेजिए। आपका स्टेट अगर इस लिस्ट में नहीं है तो चैट विंडो पे लिख दीजिएगा अपने स्टेट का नाम, और अगर आपके स्टेट का नाम इस लिस्ट में है तो सेलेक्ट करिए और आंसर भेजिए। बहुत कम समय हमारे पास बचा है, 350 लोग हमारे साथ हैं। मैं जानना चाहूंगा चैट विंडो पे, अगर आपके स्टेट का नाम इस लिस्ट में नहीं है तो वो मुझे चैट विंडो पे लिख दीजिएगा, और अगर है तो यहाँ सेलेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट आई थिंक मैक्सिमम स्टेट्स जो मैंने है वो यहाँ पे काउंट कर लिए हैं। एमपी ऑलरेडी है, मध्य प्रदेश ऑलरेडी है। ओके, ठीक है, रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज फटाफट सेलेक्ट करिए और सबमिट बटन दबाइएगा। अपना आंसर, अपना स्टेट सेलेक्ट करके सबमिट बटन दबाइएगा। एमपी ऑलरेडी है। ओके, यस, महाराष्ट्र ऑलरेडी है, तो उसमें सेलेक्ट करिए, पोल में सेलेक्ट करिए। जल्दी जल्दी, सभी से रिक्वेस्ट है। ओके, सो वी हैव वन पार्टिसिपेंट फ्रॉम बिहार, वन फ्रॉम झारखंड, वन फ्रॉम उत्तर प्रदेश। ये 3 इसमें नहीं है, बाकी मैं देख पा रहा हूँ काफी सारे। सर मैम, बैतूल ऑलरेडी मध्य प्रदेश में आता है, तो मध्य प्रदेश ऑलरेडी है। ओके, वी हैव पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम राजस्थान, गुजरात ऑलरेडी है। ऋतु मैम, बहुत सारे लोगों ने नहीं सेलेक्ट किया है,
50% लोगों ने पार्टिसिपेट किया। बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज पोल में जो है वो सेलेक्ट करिए और सबमिट बटन दबाइए। आई होप आप सभी को पोल दिखाई दे रहा होगा। चलो, so I'll just share the results. Okay. So we have एक 350 में से 190 लोगों ने ही पोल में पार्टिसिपेट किया है, यानी लगभग 50% लोगों ने ही पार्टिसिपेट किया है। और उस 50% लोग, जो 190 लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, उस 190 में से 100 लोग महाराष्ट्र से हैं, 31 लोग मध्य प्रदेश से हैं, 33 लोग छत्तीसगढ़ से हैं, और बाकी के कुछ लोग उड़ीसा, दिल्ली, गुजरात, कोलकाता, ये सारे स्टेट से बिलोंग करते हैं। ये पोल जो मैंने पूछा है उसका रीजन ये है कि मैं यहाँ पे आप सभी के साथ अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कर रहा हूँ और आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप आगे इसी तरह से ट्रेनिंग अपडेट्स पाना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, so this is my name and this is my mobile number. आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं अपना नाम, अपना एडीएस नंबर और अपने शहर का नाम। ओके, आपका नाम, आपकी सिटी और आपका एडीएस नंबर, ये तीनों चीजें लिख के मुझे व्हाट्सअप करिए। मैं आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लेता हूँ और इसी तरह से हम लोग फिर आगे के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच आज के इस अमेजिंग प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, युवा के इस कार्यक्रम में ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट एवरीवन, कीप एम्पावरिंग पीपल, लोगों को सशक्त बनाते रहिए। ऑल द बेस्ट, दिस इज योर ट्रेनर अंकित मित्तल साइनिंग ऑफ।